मेरा फोर्थ नहीं है मेरे पास भी आइडिया नहीं है कब क्या एग्जाम हो रहा है Well, so how to deal with the symmetrical circuits? The first question that comes up. Wheatstone bridge की कौन क्वेश्चन होगा आपका? What did we do in Wheatstone bridge? हाँ? अब है right? So the Wheatstone bridge scenario says that when a current flows through a circuit like this shape, which is symmetrical about this line. Now, what do you mean by symmetrical about this line? ये लाइन का लेफ्ट में जो रेजिस्टेंसेस है इनका रेशियो और इनका रेशियो तब ये वाले को चूज करने का पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपली इन दोनों को ऐड कर सकते हैं इन सीरीज, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं इन सीरीज एंड वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Now this is not only true for this circuit, for any circuit, if we have a line of symmetry, जिसके अबाउट में हम लोग सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं and they exactly overlap on one another. Like, just take up a very simple part of it. So, if I have two more resistors out here, यहाँ पर दो ज्यादा resistor है, and I fold this circuit about this line, ये वाला लाइन के अबाउट में अगर हम लोग ये सर्किट को फोल्ड करते हैं, तो देखो ये exactly इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये exactly इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये exactly इसके ऊपर ओवरलैप करेगा. And the resistances value, obviously the value of the resistances should be equal नहीं, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू इक्वल होना चाहिए. Then you basically can ignore the resistances that are coming on the line of symmetry. Line of symmetry के ऊपर जो जो resistances आएंगे, वो सारा रेजिस्टेंस हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके बाद कैलकुलेट कैसे करें. उसके बाद कैलकुलेशन करने का तरीका है तुम कोई भी एक हाफ का कैलकुलेशन कर लो और उसको इनटू 2 करो, बस दैट्स इट. मतलब अगर हम लोग ये तीन रेजिस्टर लेंगे तो उसका दूसरा एंड जो है देयर लाइन ऑन द सेम कनेक्शन. सो व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन आर दीस थ्री? पैरेलल कनेक्शन. The equivalent resistance, if I say all of them are R each, then the equivalent resistance will be R by 3, right? So R by 3 plus उधर वाला भी exactly R by 3 होगा, which are in series. तो इसका equivalent कितना हो जाएगा? 2R by 3. Is that clear? Now, if you want to calculate the same thing in a different way, as if ऐसे 3 रेजिस्टर लगा हुआ है, 6 रेजिस्टर्स लगा हुआ है, तब भी तुम कैलकुलेट करोगे, सी यू गेट द सेम थिंग. देखो यहाँ पर ये दो सीरीज में है आर, ये दो सीरीज में है और ये दो भी, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ? सीरीज 2R, so this will be also and this will be also. So if 2R are in parallel, तीन 2R parallel থাকে, তাহলে 1/2R plus 1/2R plus, so that is 3/2R. जिसका रेसिप्रोकल करने से ठीक है. Now this is a simple circuit. You'll say, sir, I'll choose this one and I'll not choose this one. Why? Because it's a simple circuit. What happens when a circuit gets a little complicated, but you can figure out the line of symmetry? तब हम लोग obviously ये वाला मेथड में करेंगे, जहाँ पर एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर दूसरा पार्ट. कहाँ पर? Look at question number 52. एकदम एंड में. Open up the assignment. Question number 52. Question number 52. यहाँ पर सारा सम्स जो है ये सिमेट्रिकल सर्किट के ऊपर बेस्ड है. All the sums are based on symmetrical circuits, but they are different shapes. Alright. So look at the first one. It's a perfect and simple Wheatstone bridge, right? देखो अगर हम लोग यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा है वो बताओ मुझे. Which one will be the line of symmetry? मिडिल वाला, R वाला. उसके अबाउट अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो देखो जो रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे वो एक्जैक्टली आइडेंटिकल है, राइट? सो जल्दी से इसका इक्विवेलेंट निकालो क्विकली.
52 फास्ट पार्ट कितना हो रहा है? 4r/3 कैसे हो रहा है? बनाई है गुड, जल्दी से। This is question number 52 part, first part. We have a shape circuit like this. This is 2r and this is 2r. So this is the line of symmetry, the vertical line. If you fold about this, 2r overlaps on 2r and r overlaps on r. So बीच वाला r resistance लेने का कोई जरूरत, तो क्या हो जाएगा? अगर ये रेजिस्टेंस हम लोग छोड़ देंगे तो तुम लोग बोलोगे सर इजियर वे टू कैलकुलेट ये है, देखिए 2r और 2r सीरीज में है और उसके साथ ये 2r और 2r सीरीज में है और इन दोनों का पैरेलल में है। So 2r plus 2r कितना होगा? और इधर 2r, तो 1/4r plus 4r आएगा, ऊपर 1 plus 3/4r. So obviously R equivalent equal to 4r/3. Well, इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वही हम एग्जांपल के तौर पे लिए थे, राइट? सेकंड पार्ट जो है यही हम लोग एग्जांपल में किए इससे पहले। हाँ या ना? Done this one? अच्छा, so what about the third one? Yes. Well, now look at this. हाँ, सॉरी, इससे पहले वाला सम्स नहीं हो रहा क्या? बना के दे हम। look at this everyone, थोड़ा ध्यान से देखो। ये वाला नेक्स्ट है, इससे पहले वाला दो सम सेम मेथड से ही करना है। ये जो हम एग्जांपल दिए एकदम सेम एग्जांपल हम दिए थे कि यहाँ पर ऐसा रेजिस्टेंस है, ये सेकंड वाला पार्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फोल्ड कहां से करेंगे बोलो? तो बीच से, कहीं से नहीं। सब आर है वो मालूम है, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे पता चलता है? अच्छा, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। तुम लोग एक आर्गुमेंट कर सकते हो कि सर लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी ले सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं ले सकते। थोड़ा ध्यान से सुनो। लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे लिया जाता है ताकि जो दो पॉइंट के बीच में तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो ना, वो दो पॉइंट जब फोल्ड करेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अगर हम लोग ये लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा। सो हम लोगों को लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे चूज करना है ताकि जो दो पॉइंट के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़े वो दो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे। समझ में आया? सो ऑब्वियसली हम लोगों को ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला चूज करना पड़ेगा। तो कौन सा रेजिस्टेंस ऑफ हो जाएगा? ये और ये। अब अगर तुम मेरा मेथड से करना चाहते हो तो ये वाला पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे। तो तीन क्लियरली आर इन पैरेलल कनेक्शन। सो इफ दे आर इन पैरेलल कनेक्शन द इक्विवेलेंट विल बी r/3। अगर एक r होता है और तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट अगर r/3 है तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगा। सो इसको इनटू 2। सो आंसर इज 2r/3। दैट्स इट। समझ में आया? राइट? अच्छा, अब ये वाला डायग्राम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। पार्ट 3 जो है एक ही सम है, सिर्फ इसको थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है और कुछ नहीं। जस्ट द सेम सम, सेम आंसर आएगा। 2r/3 आंसर आएगा। ठीक है? अच्छा, सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा कौन सा होगा? हाँ, क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसे हो सकता है या ये वाला लाइन के ऊपर से हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा लाइन के ऊपर से करने से ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। सो हम लोग इसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ले सकते क्योंकि इसके अबाउट फोल्ड करेंगे ना, तो देखो ये यहाँ आएगा और ये जो नहीं होगा। ওটা করলে এই দুটো পয়েন্ট, যে দুটো পয়েন্টের মধ্যে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বলেছে সেই দুটো পয়েন্ট একে অপরের সঙ্গে ম্যাচ না, সেটা না করলে হবে। বুঝা গেছে? বুঝতে পেরেছো? Now, so you draw the line of symmetry from here, right?
So in this case is the first case where you find that दो रेजिस्टेंस का बीचों बीच से जा रहा है, राइट? सो ये वाला पार्ट का रेजिस्टेंस R/2 होगा और ये वाला क्रॉस का रेजिस्टेंस हम लोग को R/2 लेना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है? अब देखो अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, तब क्या कनेक्शन में आ रहा है? देखो ये R/2 और ये R क्या कनेक्शन में है? बिकॉज यहाँ पर ब्रांचिंग हो रहा है और इसका दो एंड्स भी कनेक्टेड है, सो दीज आर इन पैरेलल कनेक्शन। वो पूरा चीज के साथ ये क्या कनेक्शन में है? तो पहले ये दोनों का पैरेलल निकाल लेते हैं, 2/R प्लस 1/R। गलत लिखा मैंने कुछ? नहीं लिखा। हाँ, R/2 তাহলে আমাদের প্যারালাল কানেকশন আছে না, তাহলে 1/R করতে হবে না, 1/R1 প্লাস हाँ एक तो रिकॉर्डर से तो डिस्टर्ब हो ना। So R/3 is the equivalent resistance। सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हाँ, सच में, ठीक है, राइट। ये पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R/3 और ये R जो है वो उसके साथ सीरीज में है, सो देयरफॉर सिर्फ ये वाला पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 लेते हैं इसको और R plus R1 is equal to R plus R/3 which is 4R/3। ये 4R/3 किसका है? किसका रेजिस्टेंस है बताओ? सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट का, राइट? यहां से ये ऊपर वाला पार्ट का, क्लियर? फिर नीचे वाला एकदम आइडेंटिकल है, देखो, तो ये वाला भी कितना होगा? 4R/3 होगा और यहां पर बीच में एक रेजिस्टेंस है R। ये तीन क्या कनेक्शन में है? हाँ, क्या पहले क्या बोल रहा था? भूल जाओ। So this half, I'm just drawing it out. This half is basically becoming a connection like this, जहां पर ये 4R/3 है, ये R है और ये, we all agree with this? सादिक समझ में आ रहा है? कौन सा समझ नहीं आ रहा? पहले ये R और ये R/2 क्या कनेक्शन में है? तो उसका निकाले R/3 आया, उसके साथ ये R क्या कनेक्शन में है? तो इसलिए प्लस R किए 4R/3 आया, राइट? तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक बना, ये नीचे वाला ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है उसका, तो इसीलिए वो वाला ब्लॉक का रेजिस्टेंस भी 4R/3 होगा। तो बीच में वो R है, राइट? नहीं, छोड़ नहीं देंगे, लेंगे, बाद में ले रहे हैं। ये भी R होगा, सो ऑब्वियसली ये R होगा, ये 4R/3 ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला ये 4R/3। अब समझ में आया? नाउ व्हाट कनेक्शन आर दीस थ्री इन? पैरेलल कनेक्शन, राइट? सो अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो हम लोग को 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या मिल रहा है? 3/4R प्लस 1/R प्लस, so 4R LCM लेंगे तो 3 plus 4 plus 3, that is 11/4R, right? So R equivalent equal to 10 होगा, अच्छा सर, 4R/10, that is 2R/5। यहाँ तक समझ में आया? तो ये सिर्फ लेफ्ट पार्ट का था ना, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 3 × 2, दैट इज 4R/5, ठीक है? सो देयरफॉर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 × 2R/5, दैट इज 4R/5। क्लियर? जल्दी, थोड़ा जल्दी बना। Now, see, this is the line of symmetry. अंजलि, इसके बारे, इसका अबाउट क्यों नहीं ले सकते, समझ में आया?
जब लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट फोल्ड करेंगे तब जो दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो मैच करना चाहिए, अदरवाइज समझ में आया? So now again these two are what connection, tell me? पैरेलल, ये और ये पैरेलल कनेक्शन में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? r/2। उसके साथ ये क्या कनेक्शन में है? So r plus r/2 is, तो ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन इज हाउ मच? तो ये पूरा नीचे वाला पोर्शन भी कितना होना चाहिए? राइट, ऊपर वाला 3r/2, नीचे वाला भी 3r/2 होना चाहिए, और बीच वाला क्या है? उसी बोर्ड पे। So ये 3r/2 और ये 3r/2 और ये r, they are in what connection? Parallel connection। तीनों यहाँ पर ब्रांच हो रहा है, so they are in parallel connection। तो क्या होगा? 2r 2/3r plus 2/3r plus 1/r। कौन सा वाला मैक्स हो रहा है? 3r/7। 3r/7 is the equivalent resistance of only the one part, left part। তাহলে right part টাও কত হবে? সেম হবে। So therefore R equivalent is 3r/7 into, that is 6r/7। Is that clear? अच्छा, नेक्स्ट যেটা